अनुराग भैया। हाय हाय श्लोक। हाय। आप एक अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दे दीजिए सबको। सो मैं currently फाइनल ईयर में हूँ। आई एम फ्रॉम यूएसआई सिटी, दैट इज मेन कैंपस ऑफ गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी. I am currently interning at Vedantu Innovations as a backend developer. I did GSOC with GNU as my major organization. I got selected for Mozilla as well as GNU, but I opted for GNU because that was something new for me. I've been a contributor to Mozilla since past 2.5 years, and उसके प्रोजेक्ट्स मेरे को अब बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो गया था, तो आई स्टार्टेड कि कुछ नया करते हैं, तो जीएनयू प्रोजेक्ट करा था. देन आई लाइक all people from tier 2 colleges. I interviewed at many places, and finally Vedantu was the place that I got selected for, and then I'm interning it there at this point of time. तो भैया जो वेदांतु में आपकी इंटर्नशिप लगी, वो जो अपॉर्चुनिटी थी वो ऑन कैंपस थी या ऑफ कैंपस? कैंपस थी. ऑन कैंपस हमारे कॉलेज में इतनी अच्छी कंपनीज नहीं आती है यूजुअली. So around in December, I filled 2 forms. So the first form was for Grad, the company that you pay credit card bills from. यस यस। And एक और कंपनी थी पेपाल. पेपाल को चाहिए थी 9 सीजीपी के ऊपर. उसमें मेरी 8.9 सीजीपी थी, तो 8.9 सीजीपी से भी कुछ नहीं हुआ. तो शायद वो रीजन था या क्या रीजन था पता नहीं, बट आई थिंक वो रीजन रहा होगा, क्योंकि most of the people that got the email for the interview were of above 9 CGPA. So grad में उस टाइम कोई reply नहीं आया, but in January I got the test link and then I successfully passed the test. So I had this grad offer, but उससे 10 days पहले एक cold message आया था मुझे वेदांतु की तरफ से, और around 10 or 15 employees of Vedantu started following me on LinkedIn. I was like, क्या हो रहा है? So one of the employee, Robin reached out to me and said कि we have a position for you and we would like to interview for you for the same. So मैंने बोला yeah sure, obviously, like I was happy but afraid because past 3 months में इतना सब कुछ हो चुका था कि नहीं हो पाएगा अब. तो Vedanta is a big company because recently they also got funded, और इनके पास मतलब buyouts के अभी भी बहुत सारे options आ रहे हैं, like billions में deal हो रही है इनकी. तो I was afraid कि इतनी बड़ी company मुझको क्यों approach कर रही है. So they approached me, then I gave a brief introductory round, then I gave one DSA round, then second DSA round. That both DSA round, the first DSA round was of medium level, the second DSA round was like medium to hard level, you can say. Medium level question से start हुआ, hard level तक गया. But third round was of backend developer quiz or something you can say. It went so they were using Node.js. So उनके लिए JavaScript ज़्यादा important थी. तो मैंने recently ही फ्रंट एंड मास्टर्स की बुक्स पढ़ी थी जावास्क्रिप्ट के बारे में. तो फ्रंट एंड मास्टर की बुक इज द, अगर किसी को पढ़नी है अगर जावास्क्रिप्ट, तो फ्रंट एंड मास्टर की बुक बेस्ट बुक्स होती है. तो दे वेंट मतलब एकदम डीपली इनटू concepts of JavaScript, and fortunately I was able to answer them all. Then after the interview I asked for my review and they said they found the perfect candidate, but still after that 10 days were like कि उन्होंने कोई respond नहीं करा. So I called them up again and I said कि कुछ हुआ उसका, तो they were like कि we will call you on Monday. So finally I received their call on Monday and they told me कि Anurag, you are selected and we are moving forward with the application. I was like, okay, I really did not know how to react on that. So they offered me an internship there and I'm currently interviewing at this position and I really love their work. I get to say a lot of things there. मेरे ही कुछ ideas implement हो रहे हैं and recently even मैंने जो code push करा वो production में गया and it felt really great. The company is great. अच्छा, तो भैया जैसे आपने बताया कि आपके 2 DSA राउंड्स हुए थे, तो उन राउंड्स में स्पेसिफिकली डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के क्वेश्चंस थे या
कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के एडवांस कंसेप्ट्स वगैरह भी पूछे गए थे? यूजुअली एडवांस कंसेप्ट्स को इतना वे नहीं करते, बट दे वर लाइक कि अप्रोचेस बताने के लिए यू नीड टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। यू नीड टू नो कि तुम क्यों उस क्या कहते हैं सॉल्यूशन पे आए हो। सो whenever you discuss a problem, थे ज़्यादातर वो DSA की common problems, but when we started discussing it, I have done some competitive programming अच्छे level पर थोड़ी, तो I had this clarity in my mind कि मेरे को कैसे approach करना है problem को। But if a person is just reliant on DSA completely, तो थोड़ा difficult होता है उसके लिए कि past के मतलब क्यों पहुंचा वो उसको explain करना। So I think that was a mixture of both, because the first part of the DSA round, it started out with they asked me the very basic thing of time complexity. इसकी क्या होगी, इसकी क्या होगी? They gave me like 10 to 15 codes, 10 to 15 random confusing codes, and they asked me time complexity of all of them, and then they started to ask me where they could make this code more optimized. So if it was all about DSA, then it would have been really difficult for me to answer that. So competitive programming plays a good role in that. Okay. And the rest of the questions were from DSA. I must agree. So yeah, the questions asked were mostly from the DSA thing, the classical problems. अच्छा, तो भैया जैसे आप बता रहे थे कि आपने एक दो जगह कंपनीज में अप्लाई किया, बट उनका CGPA का क्राइटेरिया काफी हाई था, 9 CGPA था। तो जो कॉलेज की हमारी CGPA होती है, क्या वो हर कंपनी में मैटर करती है कि जैसे 9 CGPA है तो हमें अबव 9 रखनी चाहिए या अबव 8, कुछ ऐसा पर्टिकुलर क्राइटेरिया जिसमें हम सेफ रहें एंड वी कुड अप्लाई टू ईच एंड एवरी कंपनी? सबसे सेफेस्ट क्राइटेरिया तो अबव 8 रहता है। अब एक कंपनी के लिए तुम 9 के लिए पीछे में नहीं भागोगे, तो सबसे सेफेस्ट क्राइटेरिया 8 रहता है। और उसमें क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट इज अ कंपनी दैट a person from tier 2 college can get placed into, so Microsoft needs 8 CGPA and above. Microsoft की hackathons में जाने के लिए भी 8 CGPA and above चाहिए होती है कई hackathons में। तो 8 and above कंफर्टेबल रहता है। 9 वाला सीन इसलिए हो जाता है क्योंकि जो बाहर की कंपनीज होती है, they see India as a whole, so the South Indian colleges get usually high CGPAs. There are many private colleges in South India and they get like 10 CGPAs. Okay. भर के एकदम। तो उनको ये लिए बाहर की कंपनीज के लिए होता है कि 10 CGPA इतने आराम से आ सकती है, तो 9 CGPA तो आ ही सकती है। So that's why criteria is इतने लेकिन high है। एक कंपनीज के लिए इतना करना जरूरी नहीं है। So 8 CGPA and above is a very safe point for anyone to pass their college life with. Okay. अच्छा, तो भैया जैसे आप अभी वेदांतु में बैकएंड डेवलपर की पोस्ट पे इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो जो भी डेवलपमेंट करते हैं बच्चे, सब बच्चे फुल स्टैक डेवलपमेंट की ही ट्राई करते हैं कि हम बैकएंड में भी अच्छे हो जाएं एंड फ्रंट एंड में भी अच्छे हो जाएं। तो एज अ बैकएंड डेवलपर आपकी जर्नी कैसी रही कंपीटिंग विद द फुल स्टैक पीपल? एक्चुअली आई स्टार्टेड आउट, मेरी जर्नी थोड़ी रैंडम थी डेवलपमेंट में। मैंने फर्स्ट ईयर स्टार्ट आउट करा ये सोच के कि आई विल बी मोर इनटू डीएसए, बिकॉज मेरे सीनियर्स ने मेरे को हमेशा बोला था कि डीएसए कर लो, सब कुछ लाइफ एकदम सेट है। जो डीएसए जो लोगों को हम लुक फॉरवर्ड करते हैं, जो सीनियर्स की तरफ हम देखते थे कि हाँ ऐसा बनना है, या फिर ऐसे सीनियर्स रॉक कर रहे हैं क्योंकि ये हर मीटिंग में दिख रहे हैं, हर स्टेज पे दिख रहे हैं, तो वो तो बोल रहे थे डीएसए कर लो, डीएसए कर लो। सर वी वर लाइक वी स्टार्टेड आउट विद डीएसए, वी स्टार्टेड गिविंग आउट कॉम्पिटिशंस ऑन कोडशेफ एंड कोड कोर्सेस। तो मेरे फ्रेंड ग्रुप था, विजय, पीयूष, वरुण, प्रांजल, हम सब डीएसए कर रहे थे। तो फर्स्ट ईयर तो ऐसे गया। देन सेकंड ईयर से हम थोड़ा स्पेसिफिक होना स्टार्ट करा कि हाँ भाई इंटर्नशिप चाहिए, स्पेसिफिक होना स्टार्ट करते हैं। तो डीएसए वाले लोगों को होता है कि छोटा छोटा कोड लिखने की आदत होती है, तो वी स्टार्टेड आउट विद कि मशीन लर्निंग करते हैं। मशीन लर्निंग में हमारे से डेवलपमेंट नहीं होगी, ये पता नहीं हमने क्यों सोच लिया था, बट सोच लिया था कि हमसे डेवलपमेंट नहीं हो सकती। तो हमने एमएल करना स्टार्ट करा एंड वी वर प्रीटी गुड इन एमएल। ऐसा नहीं बोलूँगा खराब थे, बट इट जस्ट डिड नॉट वाइब, बिकॉज सैडली इट्स अ ट्रुथ कि एमएल में आइदर यू आर वेरी गुड, बट इफ यू आर लाइक ऑल दोस पीपल दो जिनके, तो वो ऑलरेडी काम हो चुका है। अगर एनएलपी के तुम एक्सपर्ट बोल रहे हो अपने आप को, तो
you should perform better than Elasticsearch की NLP. If you are saying तुम computer vision के तुम OCR बनाने में perfect हो, तो तुम Mathpix या फिर Google की Vision API से ज़्यादा अच्छे results लेकर आओ. तो at that time I felt कि सब चीज़ों के लिए ML तो हो चुकी है already, तो हम कहाँ पर फाइट करेंगे, कहाँ पर एक अपने आप का इमेज क्रिएट करेंगे. तो मैंने उस टाइम मोजिला में कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करा था फर्स्ट टाइम इन एन एमएल प्रोजेक्ट. मोजिला's एमएल प्रोजेक्ट वाज बग. तो बग में मैंने एनएलपी में बहुत काम करा था एंड थोड़ा माइक्रो सर्विसेज पे काम करा था, डॉकराइजेशन करना उनकी इमेजेस के साथ, और उनकी डॉक्यूमेंटेशन है, एक नई डॉक्यूमेंटेशन बनी है, उस पर बहुत काम करा था, फायरफॉक्स सोर्स डॉक्स. तो ऐसे करके थोड़ा थोड़ा मतलब मैं उसके तरफ डेवलपमेंट की तरफ जाते जा रहा था कि मैंने फायरफॉक्स सोर्स डॉक्स के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पूरा डिप्लॉय करा, उसको अच्छे से प्रोडक्शन में लेकर आया एंड इट वाज अ गुड वर्क. तो इसके टुवर्ड्स जाने के बाद मैंने सोचा चलो ठीक है, अब थोड़ा GSOC एक बार ट्राई कर लेते हैं. आई हैड नो एक्सपेक्टेशन उस टाइम, सो आई स्टार्टेड आउट विद कि GSOC करते हैं, मोजिला में करते हैं, ठीक है, उसमें कंट्रीब्यूशन कर रखे थे, तो मोजिला में करे. आई स्टार्टेड कंट्रीब्यूटिंग. Later in GNU I saw a very interesting project. It was something that I have like close to my heart, कि mathematics का project था and it had C++ as main language and it was a cross-platform software called Chaos. It is a fractal zooming software. So like 5,000 people around the world, 5,000 professors around the world use it on a regular basis, क्योंकि this is the most amazing piece of code that is available on the internet for me. So मैंने उसमें थोड़ा contribute करा है. There was the mentor of this project called his name is Zoltan Kovacs, and he was so supportive. He had me throughout the process and finally I ended up being accepted by both Mozilla and GNU. So the mentors of both the organization emailed me, which organization would you like to go ahead with. I was like Mozilla में तो बहुत काम हो गया already, and the proposal for which I was applying, I thought कि ये this is something that I want to learn something new. So I went ahead with GNU and finally it turned out great. But उसके बाद I felt थोड़ा सा demotivated because after GSOC, the people from who have done GSOC in web development and in Android development, they were getting offers, they were getting called from different companies, different startups. And at that point, I was not getting an offer from anywhere because I have not done my GSOC in web development or Android. But I wrote a research paper in Conference for Advanced Mathematics and Algebra. And somehow that research paper got in the eyes of the people from Vedantu, and luck turned out pretty great. I landed up being interviewed by them and then for the internship. So developer वाली बात ये थी कि मैंने GSOC के जस्ट बाद डेवलपमेंट में जाना स्टार्ट कर दिया था बिकॉज मेरे को चाहिए थी अच्छी इंटर्नशिप. तो उस टाइम आई स्टार्टेड आउट विद React.js करता हूँ बिकॉज जो मेरे मेंटर थे जोल्टन कोवैक्स, जिनके साथ मैंने GSOC करा था, उनकी वो एक कंपनी में काम करते हैं, वो बहुत अच्छी कंपनी है ऑस्ट्रिया की, GeoGebra, that is used by like 100 million people all over the world, 100 million students. So उस ऑर्गेनाइजेशन में मेरे को पोजीशन आई थी React.js डेवलपर के लिए. तो मैंने एज अ टायर 2 पर्सन मैं जिस नदी में जा रहे थे वहां पर ही बह गया, तो मैंने React.js करना स्टार्ट कर दिया. एंड React.js करते करते थोड़ा मेरे को लगा JS इज अ नाइस थिंग, ये करनी चाहिए. थोड़ी करी थी पहले बट इतना डीपली नहीं करी थी. सो आई गॉट सिलेक्टेड फॉर दैट internship. It was a job opportunity, so I got selected, but sadly I had to start working on that time, so I had to refuse it. तो JavaScript फिर मैंने सोचा कि Node.js करनी चाहिए. तो पोस्टमैन की पोजीशन सितंबर में आई थी मेरे पास. तो पोस्टमैन is a completely Node.js company. Postman is a very great company. ये DSA पूछती नहीं है, बिल्कुल नहीं पूछती. वो Node.js के भरोसे चल रही है पूरी पोस्टमैन. सो पोस्टमैन में मैंने इंटरव्यू दिया एंड कुछ ज़्यादा उनको Node.js चाहिए था उस टाइम. तो बहुत ही ज़्यादा Node.js चाहिए था.
उस टाइम मेरे को इतना नहीं आता था, आई गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम देयर इंटरव्यू। आई नेवर नो एक्चुअली, बिकॉज कभी रिप्लाई नहीं आया ईमेल का, मतलब लास्ट इंटरव्यू के बाद, तो ऑब्वियसली रिजेक्टेड। बट क्या कहते हैं, फिर मैंने सोचा कि ये पढ़ना है, ये चीज पढ़नी है, नोट.js। सो आई सर्च थ्रू बेस्ट रिसोर्सेज कि जावास्क्रिप्ट एकदम अच्छे से आनी चाहिए मेरे को। तो फ्रंट एंड मास्टर्स की बुक्स मिली मेरे को, यू डोंट नो जेएस। आई ऑर्डर्ड दोज बुक्स एंड आई स्टार्टेड स्टडीइंग दोज बुक्स, एंड राइट नाउ आई एम एट अ पॉइंट कि हाँ हाँ बोल सकता आई नो जेएस। सो दैट टर्न्ड आउट फ्रॉम अ जर्नी टू स्टार्ट with DS, competitive programming, to ML, and then finally shifting my focus to infrastructure and then backend development. So it went specific more after I got got the internship, but before that I was trying to fit myself into positions जहाँ पर मेरा best turn out हो पाए। So it was not very restrictive कि यही करना है, and I think ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक चीज फोकस होनी चाहिए जो लाइक करा मेरे साथ। बट आई थिंक जो वीडियो देखेगा शायद तो उसको कभी पहले से फोकस रहना ज्यादा सही रहता है। यस यस। अच्छा भैया, तो एक लास्ट क्वेश्चन, जितने भी व्यूअर्स हैं सारे, उन सबको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि कैसे काम करना चाहिए, कैसे अपनी जर्नी बनाए पूरी? सो बेसिकली फर्स्ट ईयर तो देखो, मतलब कभी भी है ना, अगर तुम टायर 2 और टायर 3 कॉलेज में हो तो ये मत सोचो कि लाइफ के बेस्ट ईयर्स है, मेरे यंगस्टर वाली लाइफ है। ये देखो मेरा पर्सपेक्टिव है, सो आई वोंट से कि अपने आप को ऐसे करना, बट दिस इज जस्ट माय व्यू कि मेरे को लाइफ के मजे करना है, अभी थोड़ी होता है पढ़ने का टाइम। तो अगर तुम टायर 2 और टायर 3 के हो तो स्टार्टिंग से सीरियस होना स्टार्ट हो जाना चाहिए, लाइक इन फर्स्ट ईयर you should be like कि हाँ मजे कर, but you know you have to ask this question repeatedly to yourself कि am I doing what is right। अगर तुम सोने जा रहे हो तो उससे पहले पूछो कि हाँ भाई जितना मैंने करा, मैंने अपना बेस्ट कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर में नहीं होगा, सेकंड ईयर में नहीं होगा, थर्ड ईयर में नहीं होगा, थर्ड ईयर के एंड से होना स्टार्ट हो जाना चाहिए। लेकिन थर्ड ईयर के एंड से स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो, एंड इवन इफ यू आर मिसिंग 1 डे, वो चलता है, 2 डेज चलता है, लेकिन अगर पूरा वीक वो मिस कर रहे हो तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी खो जाओगे। सो देर आर पीपल जो एक ही रिज्यूमे डालते हैं हर कंपनी में, तो इतना भी वर्क ना करना वो गलत है। वो लोग सोचते हैं कि होना होगा तो इसी से हो जाएगा। तो मेरा ये बोलना है कि करना पड़ता है, करने के बिना नहीं होगा। और फर्स्ट ईयर से फोकस्ड हो जाओ, फर्स्ट ईयर से सारी टेक्नोलॉजीज एक्सप्लोर करो, फाइंड योर परफेक्ट फिट। फर्स्ट ईयर में कुछ छोटी सी इंटर्नशिप फर्स्ट ईयर के एंड में ले लो, जो भी फिट तुमको मिला है, एंड ट्राई टू सी कि तुम उस कल्चर में फिट हो रहे नहीं हो। सेकेंड ईयर से यू ट्राई टू मेक योर जूनियर्स लर्न अबाउट थिंग्स दैट यू हैव लर्नड, कि हाँ तुमको क्लैरिटी हो कंसेप्ट के बारे में अपने। और कभी शर्माओ मत, ना अपने सीनियर से सीखने में ना जूनियर से सीखने में। बी पोलाइट, एंड कि सीखने के लिए कोई वो मत सोचो कि इससे नहीं सीखना उससे नहीं सीखना। बिकॉज आई हैव सीन पीपल, जीसॉप का सबसे ज्यादा रेशियो होता है, नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी है एक उसका, एंड नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी टायर 3 यूनिवर्सिटी है। सो यू अंडरस्टैंड कि उनसे सीखे नहीं वगैरह वगैरह वाला फैक्ट नहीं चलेगा। तो JP Institute of Technology, JIIT, it's performing really good in terms of creating good engineers। तो मैं बोलता हूँ कि नेटवर्क ग्रो करना है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड ईयर में नेटवर्क बहुत ग्रो करो। फर्स्ट ईयर में तुमने फील्ड फाइल ढूंढ ली, सेकेंड ईयर में नेटवर्क ग्रो करा, थर्ड ईयर में तुमने उस पर बहुत लग कर जान लगा दी, एंड थर्ड ईयर के एंड में यू शुड नो कि मेरे पास 4 ऑप्शंस होने चाहिए हमेशा, कि मैं इस कंपनी में जा ही जा सकता हूँ। तो मेरे केस में नहीं था ये, 4 तो नहीं थे, 2 ऑप्शन थे, बट 4 रखना इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज कभी भी कुछ भी हो सकता है। स्पेशली हमारे टाइम में जहाँ पर 2020 एंड 2021 बोथ आर अपेयरिंग फॉर द सेम कंपनीज एट द सेम टाइम ड्यू टू कोविड। सो कॉम्पिटिशन्स बढ़ सकता है, और साथ में द प्लेसेस यू थिंक कि जहाँ पर हो सकता है वो वर्कआउट ना करें।
स्पेशली अब मैं सीरियसली जीसॉक जिन्होंने सोचा होगा मोजिला एंड जीएनयू में करने के लिए, this year they got rejected by Google, both of those organizations. And it happened in the first time of history of open source. The companies who created open source, GNU and Mozilla, they got rejected for open source. So unprecedented होता है, but यही है कि ट्रूथ ऑफ लाइफ ट्राई करना चाहिए. हाँ, बस यह होना चाहिए कि एक दिन को एक बारी में जियो and just ask yourself कि have I done what I could आज, मतलब up to my expectations. That's all. थैंक यू भैया.